मेरे अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी नहीं कर सकती। मेरी अम्मी ने, हम, मैंने, मेरे मियाँ ने, मेरे बहनोई ने, मेरे समंदर सब ने मिलके आसिया को ही गलत कहा है। मेरी अम्मी 6 सालों के अंदर मेरी बहन को ही गलत कह के आती रही है। वो तंग आई, वो कहती कि जब आपने मेरी सपोर्ट नहीं करनी तो फिर मैं अपना कोई कदम उठा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़राह इकबाल। मैं आज में मौजूद हूँ हरबंसपुरा के एक इलाका में। मेरे साथ आसिया की वालिदा मौजूद हैं। आसिया अपने ससुराली जो है तशद्दुद की वजह से, रोज़मर्रा की लड़ाई की वजह से तंग आकर अपनी वालिदा के घर आई और यहीं से कहीं गायब हो गई हैं। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ आसिया के वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची घर आई सी अपने सोहरे तो तंग हो के ते घरों चली गई। किस वजह से तंग होकर आई थी? कि ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ तो चली गई। ये लड़ाई अमूमन रोज़ होती थी? रोज़ ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, मैं नहीं ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। आपकी बेटी कहती थी कि भी मैंने अपना ससुराल नहीं छोड़ना है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ है। तो जब उसका शोहर कह रहा था कि हम अलग मकान ले लेते हैं, रोज़मर्रा की लड़ाई से जान छूट जाएगी, ਲੜਾਈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 21 ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ये गोश्त की लड़ाई किस तरह से बढ़ी मैं समझी नहीं। ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਰੋ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ। आपका दामाद नबीना है, आसिया का शोहर नबीना है। ਹਾਂਜੀ ਨਬੀਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। कहीं दूर दराज रहती हैं वो? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੁੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਵਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਠੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਸੀਆ ਨੇ आसिया के शोहर ने कहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी वालिदा ने मुझे मारा है। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਏ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੋਰ 2 ਲੂਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਮਸਦ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ। ਸੱਸ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦੀ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ समझ ਉਹ ਸੱਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। नाज़रीन मेरे साथ आसिया की जो हैं वो सिस्टर मौजूद हैं, वालिदा जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गम की हालत में और वो ठीक से बात नहीं कर पाई हैं। मैं इन्हीं से बाकी बात जानती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आसिया के शोहर जो है जब शादी की थी तब आपको पता था कि वो नाबीना है? हाँ जी, पता था हमें वो नबीना है। और कितना अरसा हुआ था शादी को? शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। इन 6 सालों में मुसलसल उसकी सास आसिया के साथ इसी तरह जो है वो लड़ाई झगड़ा करती है? ऐसे ही करती है। 6 साल हो गए शादी को, लेकिन ना 2 साल उनके साथ रही है तब भी झगड़ा रहा है, अलग हो गई है तब भी झगड़ा ही रहा है। उन्होंने एक दिन भी उसको सुकून का नहीं दिया। मियाँ बीवी में कोई मसला नहीं था, लेकिन उसकी सास जो है ना बात बात पे मतलब कि ना उसके साथ झगड़ती रहती थी। आप मेरी बेटियों को देती नहीं हो, आप मेरी बेटियों के साथ ऐसे नहीं करती। बस इसी बात से उनका घर में झगड़ा रहता था 24 घंटे। तो क्या आसिया की जो ननंद है वो गैर शादीशुदा थी, शादी नहीं हुई थी उनकी? चारों की शादी हुई है, 4 नंदे हैं, चारों की शादी हुई है। तो आसिया के शोहर क्या काम करते हैं? वो मतलब कि ना स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। हाँ जी, तो गवर्नमेंट टीचर है वो। नाबीना है, क्या पढ़ाता है वहाँ पे? वो ना बच्चों को स्कूल का पढ़ाता है। हाँ जी। तो उसकी इनकम इतनी है थी कि वो अपना घर चलाने के साथ साथ अपनी चारों बहनों का भी घर चला रहा था?
नहीं, इतनी आमदनी नहीं उसकी है, 25,000 लेके आता है, उसमें अपना ही गुजारा उनका बड़ी मुश्किल से होता था। तो वो मतलब कि वहाँ से कैसे करते। उसकी सास कहती थी मुझे भी खर्चा दो, उसका ससुर कहता था मुझे भी खर्चा दो। लेकिन ये था कि ससुर के बाद अब सास को देते भी थे, क्योंकि वो तो हमें कहते हैं कि हम खर्चा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये खर्चा नहीं देते, मतलब कि ये अच्छा घर नहीं चलाते हमारे साथ। 24 घंटे बस उनके साथ झगड़ते रहते थे। वो तंग आ गई थी अपनी ज़िंदगी से, और अम्मी के साथ आकर झगड़ती थी। वो कहती थी कि अम्मी अगर पहले मैं सुखी नहीं थी तो मैं अब भी सुखी नहीं हूँ। आसिया की पहले भी शादी हो चुकी थी? आसिया की पहले शादी हुई है, उसमें से उसका एक बेटा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। इसकी डिवोर्स ली, इसकी दोबारा शादी कर दी, फ़ौरन ही साथ ही शादी कर दी ना, जैसे डिवोर्स हुई। वो बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो अम्मी ने मतलब कि किसी ने, खाला ने ऐसे करके किसी ने बताया, अम्मी की कज़न ने तो रिश्ता देखा। हम खुद साथ जाके देख कर आए हैं। इसकी सास ने हमारे साथ इतनी डिमांडें की, इसकी जो नंदे हैं उन्होंने बड़ी डिमांडें की कि हम आपकी बेटी को ज़रा भी दुख नहीं देंगे, हम आपकी बेटी को ऐसे रखेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। क्या आपकी बहनोई की शादी हुई थी पहले? नहीं, उनकी शादी नहीं थी हुई। 2 माह बस गुजरे हैं शादी के, उसके बाद फ़ौरन झगड़े शुरू हो गए हैं। झगड़ा सिर्फ घर के खर्चे की वजह से होता था, जो कि मियाँ बीवी में नहीं था, सिर्फ सास में होता था। सास में था, कभी मियाँ बीवी में भी हो जाता है, लेकिन यह है कि सास मतलब कि कहते ज़्यादा करती थी। अब हमने तो अपनी बहन के मुंह से सुना है। क्या आप लोगों को खुद नहीं पता था कि वाकई उसके घर में इशू है कि नहीं है? वो बताती आके, वो मतलब कि महीना नहीं था गुजरता अम्मी की तरफ आ जाती थी, साल नहीं था गुजरता, यही बस 1 साल सुकून से गुजरा है जब से वो सेपरेट हुई है। तो उसने अपना किचन वगैरह बनाया, पैसे लगा के सब कुछ किया उसने, लेकिन यह है कि उसके बाद उन्होंने फिर उसे वही दुख तकलीफ़ देनी शुरू कर दी कि नहीं ये हमारे साथ गुजारा नहीं कर सकती, ये ऐसे है, ये अच्छी नहीं है, इसकी पहले शादी हुई है, वहाँ नहीं बस किया है, यहाँ कैसे बसेगी। पुरानी शादी के बिला वजह ताने देने और घर में जो है बदमज़गी पैदा करनी। घर के भी ताने देती थी कि तुम्हारे घर वाले गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं। तो आपको पता बेटियाँ बर्दाश्त नहीं करती, बस इसी बात से हर वक्त। अभी जो है वो कुर्बानी के गोश्त की वजह से झगड़ा हुआ है और आसिया अपनी वालदा के घर मतलब अपने मायके आई है। तो फिर आप लोगों के घर में ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के घर से आसिया जो है वो घर छोड़ के चली गई है? वो आई थी, मेरी अम्मी ने उसको कहा था कि मैं आपकी सास को बुलाऊंगी तो आपको घर भेजूंगी। तो लेकिन ना जब उसका मियाँ आया था तो उसकी बातें सुनी, तो हमने आसिया को मतलब कि गलत कहा कि बेटियां घर में अच्छी, मेरे अब्बू नहीं है, मेरे अम्मी नहीं कर सकती। मेरी अम्मी ने, हाँ मैंने, मेरे मियाँ ने, मेरे बहनोई ने, मेरे सब ने मिलके आसिया को ही गलत कहा है। मेरी अम्मी 6 सालों के अंदर मेरी बहन को ही गलत कह के आती रही है उनके घर में। इस वजह से कि घर पे आपके वालिद नहीं है, और अगर ससुराल वालों से लड़के आओगे तो यहाँ पे लोग क्या बातें कहेंगे, क्या बातें करेंगे। बस इसी वजह से वो तंग आई। वो कहती कि जब आपने मेरी सपोर्ट नहीं करनी तो फिर मैं अपना कोई कदम उठा लूँगी। उसने तो अभी देखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटियाँ हमेशा ठीक होती हैं, गलत भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आसिया कहीं ना कहीं ठीक थी तो आप लोगों को साथ देना चाहिए था ना उनका। आसिया कहीं गलत भी थी, कहीं सही भी थी, लेकिन जब हम अपने घर की तरफ देखते थे ना, हम कहते थे हमारी बेटी गलत है। हमने हमेशा अपनी बेटी को ही गलत कहा है। उसका अंजाम अब देखा है कि आप ही के घर से वो अपना मतलब बच्ची छोड़ के चली गई है, सब कुछ छोड़ के चली गई है। वो सुबह उठी है, उसने चादर लिया, हमने नहीं देखा। मैं खाना बना रही थी, अम्मी लोग सारे खाना खा रहे थे। उसने मोबाइल टेबल पे रखा है और अपनी बेटी को ये बता के गई है कि मैं बेकरी पे जा रही हूँ, मैं केक लेने जा रही हूँ और मैं नाना अबू की कब्र से होके ना मैं घर आ जाऊँगी। बस वो यही कह के गई है। और हमने उसकी बेटी से आधा घंटा गुजरा, हमने उसकी बेटी से पूछा, कहती मम्मा, कहती मैं नाना अबू की कब्र पे जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए केक लेके आऊँगी। अभी तक वापस नहीं आई। अभी तक वापस कोई उसका फ़ोन, कोई अता, कोई पता नहीं। पूरे ख़ानदान से पता कर लिया, उसकी सहेलियों के घर से पता कर लिया, गली मोहल्ले सब से हमने पता कर लिया, वो कहीं भी नहीं। पुलिस में आपने कंप्लेन करवाई, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? उन्होंने कंप्लेन कर ली थी, उन्होंने कहा था जैसे हमें मिलेगी हम बता देंगे। हमने सुबह भी कॉल की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जैसे हमें कुछ पता चलेगा तो हम बता देंगे, क्योंकि हम घर घर में जाके लोगों के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। कि ज़ाहिर है जैसे हमें कोई लाश मिलती है या कोई गुमशुदा पता चलता है तो हम वहाँ ही जाते हैं, तो फिर ही हम सब कुछ बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आसिया के वापस आने पे और जिस तरह से वो गुम हो गई है? मैं बस यही कहूँगी वो जहाँ भी है वो वापस आ जाए। उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, मेरी अम्मी नहीं बर्दाश्त। आसिया की बेटी कहाँ पे है?
اس کے پاپا کے پاس ہے. میری امی کی کزن ہے ساتھ والے گھر میں, ان کے گھر وہ سبزی بھیجتا ہے کہ مجھے کھانا بنا دو. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نابینا ہے اس وجہ سے. ہاں وہ کچھ بھی نہیں, اس کی بچی پہ نہیں کر سکتی. آسیہ سب کچھ کرتی تھی, اس کو اسکول بھی چھوڑ کے آتی تھی, اس کو اسکول سے لے کے بھی آتی تھی, لیکن اس کا صلہ انہوں نے آج ہمیں یہ دیا. اور میں تو اس کے بعد یہی کہوں گی کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہی کہوں گی میری بہن جہاں بھی اسے کو واپس آ جائے جس بھی حال میں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ کے بعد.